Students, today we are going to discuss some topics from second chapter, electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential and capacitance. बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Students, a force is said to be, listen carefully, a force is said to be conservative if it depends only on initial and final positions. If it depends only initial and final position. तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कंजर्वेटिव फोर्स को? ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, अ फोर्स is said to be conservative. A force is said to be conservative if work done by the force between 2 points is independent of the if work done by the force is independent of the path followed. Is independent of path followed and it depends only initial and final positions. Initial and final positions. Further और आगे डिस्कस करें तो वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज ज़ीरो। ये पहचान है इसकी। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is always ज़ीरो। ये जो फैक्ट है इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में, ठीक है। अब हम पहले प्रूव करेंगे इंडिपेंडेंस नेचर ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Independence of line integral of electric field on the nature of path between 2 points. Independence of line integral of electric field. Independence of line integral of electric field on the nature of the path. On the nature of the path. On the nature of the path. ठीक है। इसके लिए बच्चों हमको एक डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा।
This is a system of perpendicular axis. This is origin O. A charge Q plus Q is placed at origin. The electric field due to this charge is indicated by these lines. This is the direction of electric field. In this electric field there is a path AB, ठीक है, along which we move an electric test charge. The position vector of point A from origin is RA and the position vector of point B from origin is RB, ठीक है. Now consider a point charge plus Q. Consider a point charge plus Q located at the origin O. Located at the origin O. ये प्लस क्यू चार्ज हमने दिखाया. Located at origin O of the coordinate frame of the coordinate frame Z, X, Y, ठीक है. The electric field due to point charge will be directed along the dotted line. Electric field due to this charge plus Q is directed along these dotted lines, ठीक है. And the electric field due to this point charge at O is radially outward, ठीक है, is radially outward from the point charge. जैसे दिखा है रेडियली आउटवर्ड चार्ज है ये फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. सपोज दैट ए बी इज एनी पाथ. यहाँ पर हमने क्या लिया, ये जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज दैट ए बी इज एनी पाथ. ये पाथ कैसा हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. स्ट्रेट बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये फाइनल पॉइंट है बी. बिटवीन A and B in the electric field of the point charge plus Q, such that OA equal to RA and OB equal to RB. OA equal to RA and OB equal to RE. Now we take an infinite small portion of this path PQ. ये पोर्शन इस ए बी पाथ पर एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं हम, वो है पी क्यू. एंड दिस पी क्यू इज इक्वल टू डी एल. पी क्यू इज इक्वल टू डी एल, ठीक है. पी क्यू इज इक्वल टू डी एल. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिव्स मेजर ऑफ फोर्स. देखिए बच्चों, यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम कैसे फॉलो करेंगे, फोर्स की तरह से. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिव्स मेजर ऑफ फोर्स. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिव्स measure of force. Electric field E gives measure of force on a unit positive
on a unit positive test charge. On a unit positive test charge placed at point P. Placed at point P. ये पॉइंट की है बच्चों ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से जो हमने एक ये छोटा साइज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं पी क्यू विच इज़ इक्वल टू डी एल. ठीक है. देयरफॉर E इंटू डी एल. E इंटू डी एल. यहाँ पर हमने E किस तरह से लिया है, किसकी तरह से एक्ट कर रहा है. E इज एक्टिंग लाइक ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग लाइक ए फोर्स एंड dl इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. dl हमने क्या लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. देन इन दोनों का प्रोडक्ट E इंटू डी एल इज इक्वल टू इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at point P. Placed at point P. ठीक है. अब ये तो वर्क डन है इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पी क्यू के लिए विच इज़ इक्वल टू डी एल. अब अगर हम इसको टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल वर्क डन बाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ये जो वर्क डन है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको इंटीग्रेशन कर देंगे उसका फॉर टोटल लेंथ. टोटल लेंथ कितनी है ए बी. देयरफॉर ई इंटू डी एल. ई इंटू डी एल इसको इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे पाथ के लिए. क्या है हमारा पूरा हाथ, फ्रॉम ए टू बी. इंटीग्रल ए बी ई इंटू डी एल ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी. इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. लाइन इंटीग्रल ए बी ई इंटू डी एल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब यहाँ पर बच्चों ये जो क्वांटिटी है इतनी ये वाली है, द क्वांटिटी लाइन इंटीग्रल ए बी ई इंटू डी एल is called the line integral of electric field. Is called the line integral of is called the line integral of electric field. Is called the line integral of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी.
between point A and B। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो लाइन इंटीग्रल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, जैसा कि हमको इसकी एक्सप्रेशन से दिखाई दे रहा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली ए और बी पर। ए क्या है? इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है? फाइनल पोजीशन। तो इसीलिए ये प्रूव हो जाता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। यहाँ पर पाथ इस एक्सप्रेशन में कहीं नहीं है कि पाथ कैसा है, कर्व्ड है कि स्ट्रेट है। देयर आर ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए एंड बी इन दिस एक्सप्रेशन विच गिव्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।